तेरी मैं दीवानी हो गई। तो बताइए उस वक्त छत पर क्या हुआ था? पायल को छत से धक्का हमने दिया। हमने मारा है उसे। नहीं मम्मी, पार्थ कभी बाहर की जान नहीं ले सकते हैं। चलो बैठो जाके गाड़ी में। और सब जानते हैं कि गुनहगार कौन है और सजा सिर्फ और सिर्फ गुनहगार को ही मिलेगी, बेगुनाह को नहीं। पापा ना हमारा भविष्य जेल नहीं हो सकता पापा। हमारा घर बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। अल्लाह, क्यों? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
दी तुमने? और वो मोहन की दुकान से हर्बल रंग ले आई ना? मीरा को रंग बहुत पसंद है। हाँ मम्मी, याद है हमें, वही ले लिए थे हमने। सही किया तुमने। वैसे भी बहुत सालों के बाद वो घर आ रही है, तो उसे भी तो लगना चाहिए ना कि हमारे साथ साथ ये घर भी उसका इंतजार कर रहा था। इसलिए सब कुछ उसकी पसंद का होना चाहिए, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। पुष्पा बेटा, इसे फ्राई करो, मैं आती हूँ। तुमने मीरा का कमरा साफ कर दिया ना? हाँ दी, कर दिया मैंने। अच्छा देखो, धूल जरा सी भी ना हो, डस्टिंग अच्छे से कर दो, वरना उसे छींके आने लगती है। मैं ये करती हूँ, तू जल्दी से ठंडाई बना ले। अच्छा बेटा, तुमने उसके बेड पे कोई सामान तो नहीं रखा ना? उसका बेड खाली है ना? माँ, हम क्यों करेंगे ऐसा जब हमें पता है कि दीदी आ रही है? तो ऐसा लग रहा है बस आपको ही उनकी फिक्र है। अरे पगली, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। इतनी चिंता थी उनकी तकलीफ की, तो जबरदस्ती क्यों भेजा उन्हें यहाँ से? पहले जाने के लिए टॉर्चर किया, अब आने के लिए कर रही हो। आपका तो कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। हमें समझने के लिए पहले तुम्हें एक बेटी की माँ बनना पड़ेगा। उस वक्त यहाँ से भेजना ही उसके लिए सही। इतना ही सही कि उन्हें खुद के घर से थोड़े बहुत नहीं, पूरे 7 साल के लिए आपने अलग कर दिया माँ। ये भलाई नहीं, सजा है। नादानी और बचपन में अगर किसी से गुनाह हो जाता है ना, तो उसे सजा या कैद नहीं बल्कि सुधार गृह भेजा जाता है। और हमने वही मीरा के साथ किया। कभी कभी मर्ज को सही करने के लिए कड़वी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, और वैसे भी उसे खुद से दूर करके सबसे ज्यादा तकलीफ तो हमने ही उठाई है। आपने नहीं माँ, सबसे ज्यादा तकलीफ तो हमने उठाई है, क्योंकि उनके हिस्से की सजाएं भी आपने हमें दी, उनके हिस्से की पाबंदियां भी आपने हम पर थोपी है। उन्होंने जो किया उसका खामियाजा पूरे 7 साल हमने भुगता है माँ, और अब आपको उन पे प्यार आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है माँ। अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। हम तुम्हें तुम्हारी मौसी के घर भेजे, और वो भी आज। हम जानते हैं हमने जो कुछ भी किया उससे कोई खुश नहीं था, पर तुम नादान थी, किस्से कहानियों की दुनिया में थी। पर जिंदगी परियों के किस्सों से बहुत अलग होती है बेटा। माँ बाप अपने बच्चों का सपना हमेशा पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, ना कि उन्हें बिखरते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारे भविष्य के लिए हमें जो भी सही लगा हमने वही फैसला किया। पर एक नई शुरुआत करेंगे, और भगवान करे शनि की 7.5 की तरह उस हवेली की 7.5 भी इस घर से उतर गई हो। अरे ये क्या, जरा जल्दी करो, कितना काम बाकी है। आज हमारे बेटे के साथ साथ इस हवेली के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दुल्हन की तरह सजाओ हमारी हवेली को। ये लड़ियां जरा ढंग से लगाओ, सब कुछ कायदे से चाहिए हमें, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। बुरा ना मानो, होली है। जुग जुग जियो बेटा,
खूब नाम करो। थैंक यू काकी। देखो ना, ये लड़के कितने उपद्रवी है। ये काकी छोड़िए ना, आप अपना मन खराब मत करिए, माफ कर दीजिए इन्हें। शायद तभी तो वो कहावत है ना, बुरा ना मानो होली है। इस दिन तो अपनी जिंदगी में रंग भर लेने चाहिए, वो भी थोड़े नहीं, ढेर सारे। वो क्या है? हाँ, अनलिमिटेड फोन रिचार्ज, ताकि अगले साल तक कोई टेंशन ना हो। अरे मेरा रिचार्ज तो तुम्हारी बातों से ही हो गया बेटा। खूब खुश रखो और भगवान करे सबकी जिंदगी में तुम ऐसे ही खुशियों के रंग भर दो। जीती रहो बेटा, खूब खुश रहो। आराम से। छाया, बिट्टू, अरे मीरा आ गई है। स्मृति, बेटा आरती की थाल ले आ, मीरा आ गई है। लिफ्ट। कैसी हो आप मम्मी? 7 साल बाद बेटी घर लौटी है तो माँ कैसी होगी? इतने सालों में तुम्हें जरा सी भी याद नहीं आई हमारी? क्या इतने बुरे हैं हम? मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? याद नहीं आती थी मतलब? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे हमने आपसे इतने सालों में बात ही नहीं की। रोज तो करते हैं, कल ही रात को तो वीडियो कॉल पे बात की थी। अरे फोन पे भी बातें करना कोई बातें होती हैं? अपने कलेजे के टुकड़े को इस तरह छू कर महसूस कर तो प्यार थोड़ी ना कर पाते हैं हम फोन पे। कितना तरस गए थे हम, तुम नहीं समझोगी। हम समझते हैं। इसलिए इतने साल तुम लौट कर नहीं आई ना? अरे अब तो लौट के आ गए हैं ना, देखिए खड़े हैं हम आपके पास में। और अब तो हम आपको इतना परेशान करेंगे ना कि आप सोचेंगी कि ये तो दूर ही अच्छी थी, क्यों आ गई यहाँ पे। चुप करो, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। स्मृति, बेटा दीदी का सामान कमरे में जाके रख दो। पहले रुको, इधर आओ। वेलकम बैक दीदी, आइए। इसे क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या होता, सब ठीक है। तुम जल्दी से जाके मुंह धो के फ्रेश हो जाओ, हमने तुम्हारी पसंद की गुजिया बनाई है। सच्ची? हाँ। अब तो बहुत मजा आएगा। रुक, सुन सुन, ये देख, हर्बल रंग तुम्हें बहुत पसंद है ना? तुम्हारे पापा कह रहे थे कि मीरा का मनपसंद त्योहार है होली। हम सब मिलके इसे बड़े धूमधाम से मनाएंगे, बड़ा मजा आएगा। मैं खाना लगाती हूँ। पूरे 2 दिन की मेहनत लगी है आपके साइड की अलमारी साफ करने में। अकेले रहने की आदत हो गई थी ना, कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं ना,
तो तुम्हारी ये खराब आदत भी अपने आप चली जाएगी। दीदी आप अपनी इसमें कपड़े रख दीजिए, हम अभी आते हैं। क्या हो गया है बिट्टू? इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों? ठीक से बात भी नहीं कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है दीदू, बात तो कर रहे हैं ना हम। आप फ्रेश हो जाइए, हम आपका सामान रख देते हैं। पहले हमें ये बताओ कि वो हमारी प्यारी सी छुटकी कहाँ चली गई जिसे हम यहाँ छोड़कर गए थे? ये तो वो नहीं है। बस दीदू बड़े हो गए हैं। बड़े होने से इमोशंस गायब हो जाते हैं। कुछ भी मत बोलो बिट्टू। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, मम्मी ने तो बहुत सारी तैयारियां की है ना होली के लिए, तो वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमारी बातें तो होती रहेंगी ना। ये लीजिए टॉवल, पापा आपका फेवरेट फेस वॉश भी ले आए हैं। 7 साल पहले एक होली ने हमारे पार्थ को हमसे छीनकर हमारी जिंदगी के सारे रंग भी छीन लिए थे। तब से लेकर आज तक हमारे लिए इश्क का रंग सफेद है। हमने कभी होली नहीं खेली, लेकिन आज पार्थ वापस आ रहे हैं। उन्हें रंग कर हम अपना ये व्रत तोड़ेंगे और अपने प्यार में फिर से रंग भरेंगे। ओह गॉड दीदी, उनका भूत अभी तक नहीं उतरा आपके सर से? भूत? भूत नहीं, इश्क है वो हमारा। ऐसे कैसे उतर जाएंगे? पार्थ हमारी रूह में चाशनी की तरह चढ़े हुए हैं, और चाशनी एक बार चढ़ जाए तो मिठास कभी छोड़ती है क्या? पर दीदी 7 साल काफी होते हैं किसी को भूलने के लिए, और आप तो 7 साल बाद भी वही राग अलाप रही हो। हम तो बड़े हो गए, पर आप भी वही हो, बचकानी। बचकानी नहीं, दीवानी। हम दीवाने हैं पार्थ के, और दीवानगी वक्त क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। इन 7 सालों में एक दिन, एक पहर, एक पल के लिए भी नहीं भूले हम उन्हें। उनकी यादों के सहारे तो जिंदा थे हम, इस उम्मीद में कि कब हमारा इंतजार खत्म होगा और वो जेल से रिहा होंगे। और देखो, आज वो दिन आ गया। अच्छा, तो आप पार्थ की वजह से घर लौट कर आई हैं? दीदी आपका ये दीवानापन आपको कभी तबाह कर देगा। प्यार तबाह नहीं करता बिट्टू, प्यार तो आबाद करता है, जिंदगी खूबसूरत बनाता है। ये सब बकवास है दीदी। आपके तो प्यार ने आपकी ही नहीं, हमारी भी जिंदगी तबाह की है, और आपकी वजह से हमें उनसे नफरत हो गई है। अरे अरे अरे, तुम पर मम्मी का रंग चढ़ गया है क्या? कैसी बातें कर रही हो? और क्या बिगाड़ा है तुम्हारा बेचारे पार्थ ने? बहुत कुछ, पर आप नहीं समझोगी दीदी, क्योंकि आपको उनके सिवाय तो कोई और दिखाई नहीं देगा। बीमारी है वो आपकी। ये सही कहा तुमने, इश्क रोग है, बड़े बड़े शायरों ने कहा है। भगवान करे कि हमारे बिट्टू को भी जल्दी से वो रोग हो जाए, ताकि उसे भी सब समझ आ जाए। अच्छा चलो, अब हम जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं, वरना हम लेट हो जाएंगे। हमें पार्थ को लेने जाना है। हम चाहते हैं कि हम उन्हें सबसे पहले देखें। वैसे तो उनके घर वाले होंगे वहां उन्हें लेने, पर हम चाहते हैं कि हम भी वहां हों। आज का जो अपराधी है ना, 7 साल बाद जेल से बाहर आ रहा है। सुना तो मैंने भी है, किसी लड़की का मर्डर किया था उसने।
जाने कैसे लोग हैं, पार्थ इतने टाइम बाद वापस आए और कोई उन्हें लेने तक नहीं आया। छोटे मुंह आ जाते। लगता है 7 साल में परिवार वाले भी भूल गए तुझे। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। दीदी दीदी रंग खरीद लो ना मेरे से, देखो इसमें तो गुलाल भी है। आपके साथ कोई हो या ना हो पार्थ, लेकिन आप अपनी मीरा को हमेशा अपने साथ खड़ा पाएंगे। आपके परिवार के लिए चाहे ये दिन कोई महत्व ना रखता, लेकिन हमारे लिए ये होली, दिवाली, ईद सब कुछ है, और हम आपके लिए भी इसे स्पेशल बना कर ही रहेंगे। भैया सुनो, आपके लिए। हैप्पी होली। हम होली नहीं खेलते। ये होली का जो त्योहार है ना, हमारा फेवरेट त्योहार है यार। और इस दिन जितने रंग बटोरने हो ना, इस दिन सब बटोर लो अपने जीवन में। वो कहते हैं ना, अनलिमिटेड रिचार्ज। अपनी लाइफ में भी रंगों का ना अनलिमिटेड रिचार्ज कर दो यार। कर दे, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। हमने पायल से वादा किया है, उसको होली का पहला रंग हम ही लगाएंगे। क्यों पायल, क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? तुम उस लायक ही नहीं हो कि कोई लड़की तुमसे प्यार करे। अरे कहाँ ना जाओ यहाँ से पायल। पायल! हम होली नहीं खेलते। अखियों को चैन मिले जब तू आई ना, समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना, जानू तो जानू बस मैं तेरी। हैप्पी होली पार्थ। चाहे जो भी हो जाए, आपकी मीरा अपने पार्थ की जिंदगी में रंग लौटा कर ही रहेगी। आप पहले की तरह फिर से होली खेलेंगे और दूसरों की जिंदगी में फिर से रंग भरेंगे। मीरा, स्मृति, बेटा जल्दी से बाहर आओ, गर्मा गर्म खाना तैयार है। आ रही हूँ माँ। जल्दी से आके खाना खा लो, उसके बाद तुम्हें और मीरा को मोहल्ले में जाके मिठाई भी बांटनी है।
वीरा कहाँ रहेगा, उसे भी बुला लेती बेटा। हमें पार्थ को लेने जाना है। आज हमने सब कुछ तुम दोनों की पसंद का बनाया है। आपकी लाडली बाहर गई है माँ। होली वाले दिन बिना बताए अकेली कहाँ चली गई? अरे भाई, बाहर चली गई तो क्या हो गया हा? इतने सालों के बाद आई है तो अपने दोस्तों से मिलेगी ना, उनके साथ होली खेल रही होगी। लड़की भी ना पीछे से फोन लगाते हैं। अरे भगवान, छोड़ दो उसे। लेकिन आप मेरी बात। तुम मिठाई के बारे में सोच रही हो, उसे हम दोनों जाकर बांट आएंगे। तुम फटाफट तैयार हो जाओ बस, जब तक कुछ खा लेते। हम पसंद करते हैं पार्थ को। अगर आप इन तस्वीरों को जलाना चाहती हैं तो आपको हमें आग लगानी होगी। आज से 7 साल पहले जो कुछ भी हुआ, बस उसे सोच के डर जाती हूँ। भगवान न करे फिर अभी ऐसा कुछ हो। इतना कुछ होने के बाद भी पार्थ पायल को याद करके रो रहे हैं। यही होता है असली प्यार का चेहरा। फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या है, कैसा है। बस आपका प्यार और आपकी शिद्दत, बेइंतहा मोहब्बत। कला है इतनी शिद्दत से प्यार करना। सबके बस की बात नहीं है। होली है। पार्थ, होली के शुभ मुहूर्त में ठाकुर साहब ने इस तरह का आयोजन करके बहुत अच्छा किया। हाँ, बात बेटे की है, आयोजन तो अच्छा होगा ही ना। आइए चलते। गर्व के लिए बड़ा ही खास दिन है आज। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने बड़ी मेहनत की है। हमारा, आपका और पूरे परिवार का नाम रोशन किया है इसने। सर, आप गर्व जी और इनके द्वारा किए गए इस चैरिटी के लिए क्या कहना चाहेंगे? गर्व ने अपना नाम चरितार्थ करके दिखाया है। सच में ये हम सब के लिए गर्व का कारण है। अपने एरिया के स्कूल के लिए इन्होंने बहुत बड़ी रकम दी है। गर्व जी, पूरे शहर में आपके नाम के चर्चे हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? कैसे आया विचार, या फिर आपकी इंस्पिरेशन कौन है? हमारी इंस्पिरेशन हम खुद हैं।
जो अच्छा लगता है हम वही करते हैं। बच्चे हमारे देश का भविष्य है और हम चाहते हैं कि उन्हें बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटीज मिले। सर, देखते ही देखते आप पूरे शहर के मोस्ट एलिजिबल बैचलर बन गए। प्लीज बताएं आप शादी कब कर रहे हैं? देखिए, जिस दिन कोई पहली नजर में दिल में उतर जाएगी उसी दिन रिश्ता पक्का समझिए। हम आप सबको इनविटेशन भेज देंगे। आई होप कि आपको आपके ट्रिप में बहुत जल्दी मिल जाए। थैंक यू। बाय द वे, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या हम डोनेशन की रकम जान सकते हैं? ये हम बताते हैं आपको। गर्व ने ठाकुर परिवार की लेगेसी को बहुत खूबसूरती से बढ़ाया है। और रही बात रकम की, तो वो कोई छोटी मोटी रकम नहीं। इन्होंने पूरे 21 लाख का डोनेशन दिया है। वाह सर, 21 लाख, दैट्स टू मच। क्या बात, ग्रेट। गर्व, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इधर आओ। हाँ, मैं आता हूँ। इतनी बड़ी रकम तुमने दान में दे दी, मुझे बताना जरूरी नहीं समझे? और इसमें पूछने वाली क्या बात है पापा? हैं? इतने टाइम से सब कुछ हम ही हैंडल कर रहे हैं ना, तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट कैसे मैनेज करना है और टैक्स कैसे सेव करना है। अरे फिर भी अरे पापा प्लीज। अब आप सब कुछ नहीं संभाल पा रहे थे अच्छे से, इसलिए हमने टेक ओवर किया ना। सुनिए, ये बिजनेस ना आपकी आउटडेटेड पकड़ और अकल से बहुत ऊपर जा चुका है। तो हमें हैंडल करने दीजिए। आप अपनी रिटायरमेंट की लाइफ एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए। और ज्यादा हो रहा है तो एक 4 धाम की यात्रा प्लान कर लीजिए मम्मी के साथ। भाई साहब, ये नई पीढ़ी है, इनके सामने अपनी इज्जत अपने हाथ में ही रखना बेहतर है। ये आपका बेटा है, आपका भाई कभी नहीं बन सकता, जो सारी जिंदगी सिर्फ आपकी सुनता है। नहीं भाई साहब, मेरा मतलब यह है कि आपको उन सबसे दूर रहना चाहिए। क्यों आप ये पूछताछ करके अपने आप को बार बार शर्मिंदा करा रहे हैं? और देखिए ना, हाल ही में आपका हार्ट अटैक हुआ है और आपका दिल बहुत कमजोर है भाई साहब। और रही बात इसकी, तो गर्व ने सारी कमान अपने हाथ में बराबर से संभाल तो रखी है। ठीक ही तो कह रहे हैं ये। अब देखिए भाई साहब, ड्राइविंग सीट पर तो गर्व ही है ना। हम सबका जीना मरना तो उसी के हाथ में है। और वैसे भी गर्व बात की तरह तलवार का, जिसे जब चाहे चला दिया और जब चाहे म्यान में डाल के बाहर कर दिया। वो तो तीर है, तीर। चला तो चला, फिर भले ही चलाने वाले को बेच कर चला जाए। वैसे तो हम कड़वा बोलते नहीं, पर सच कहे तो आज बहुत दुख हो रहा है ये सब हालात देखकर। बुढ़ापे की दो लाठियां, लेकिन देखो, एक बस में नहीं और दूसरा कातिल। हैप्पी होली। अरे भाइयों, ये तो वही लगता है, खूनी। जिस लड़की पे मरता था उसी की जान ले लिया।
अरे हाँ, लग तो वही रहा है। आशिक दीवाना जेल से भाग कर आया है। लगता है होली के लिए भाग के आया है। सुना है बचपन से ही बड़ा पसंद है इसे होली का त्योहार। तो एक काम करते हैं, इसके साथ खेलते हैं होली। देख लो भाई, रंग की खेलनी है या खून की होली। शेर के मुंह में एक बार खून लग गया ना तो उसे और कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या हो गया, गुस्सा आ रहा है खूनी को? अबे भाई को गुस्सा मत दिला वरना हमारा भी खून कर देगा ये। अच्छा, हमारा खून कर देगा? तो कुछ भी कर ले, तेरे साथ तो हम होली खेल कर रहेंगे। हमें रोकने वाला यहाँ कोई नहीं है। अरे अरे अरे, कहाँ? अब तो तुझे रंग लगा कर रहेंगे। तेरे साथ तो हम खेलेंगे होली। बोला ना, हम होली नहीं खेलते। हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना है। अच्छा चल ठीक है, तुझे कलर वाली होली नहीं खेलनी तो एक काम करते हैं, प्रयागराज को आज बनाते हैं बरसाना और खेलते हैं लठ मारने वाली होली। खूनी कहीं का, दोबारा यहाँ दिखाना तो जान से मार दूंगा। और आता हीरो बनने। हीरो। हिम्मत कहते हो इस बात को हाथ लगाने की? दूर हटो। हमने कहा दूर हटो। अबे दूर हटो। क्या कर रहे हो ये? हाँ, अगर उनके पास भी आए तो ठीक नहीं होगा। ए मैडम जी, ज्यादा लक्ष्मीबाई बनने की कोशिश मत करो, वरना देश के लिए नहीं इस पागल के लिए मरना पड़ेगा। सीधा जान ले लेता है खूनी। खूनी? खूनी कैसे बोला? हाँ, खूनी को खूनी नहीं बोलेंगे तो क्या हीरो बोलेंगे? भाई साहब, ये होली की मिठाई है। दरअसल हमारी बेटी मीरा कई सालों के बाद घर लौटी है ना, तो उसी खुशी में हम मिठाई बांट रहे हैं। अरे बधाई भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। कहाँ है मीरा बिटिया? तुम कौन होते हो उन्हें नाम या सजा देने वाले? और अगर उनसे कोई गलती हो भी गई तो उसकी सजा वो भुगत चुके हैं। ये लड़की, ओए, ज्यादा ना वकील मत बन, कचहरी नहीं चल रही है, समझे ना? इसके साथ जो हमें करना है वो हम करके रहेंगे। अच्छा, तेरे दिल में क्यों इतनी आग लगी हुई है?
तूने भी इसे प्यार कर लिया है क्या? ये लड़की, जिंदगी प्यारी नहीं है तो जहर खा ले। ये है ना, तेरे को बहुत बुरी मौत देगा। लोग ऐसे नहीं मानोगे। हटो, वरना जला देंगे तुम्हें। हटो, हटो यहाँ से। पार्थ, 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 आंखें खोलिए। पार्थ, हेलो, एम्बुलेंस। सीधा जाइए। हमारी बात तो सुनिए। पार्थ, पायल को छत से धक्का हमने दिया। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।